خبروں کے دوسرے نشرے کے ساتھ میں ہوں فرزانہ صفدر. پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے پاکستان کے وزیر اعظم کے نام ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے. ترکی کے صدر کے ساتھ آج نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ملاقات کی جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور خطے کے تازہ حالات پر بات چیت کی گئی. فلسطین سالانہ فورم کا پہلا ایڈیشن آج سے دوحہ میں شروع ہو گیا ہے. ادھر بیت المقدس میں فائرنگ کے ایک اور واقعے میں 2 اسرائیلی آبادکار زخمی ہو گئے ہیں. روس اور یوکرین دونوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشرقی شہر اوگلیدار کے اطراف میں شدید لڑائی ہو رہی ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف کے نام ایک تحریری پیغام ارسال کیا جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے. پاکستان میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبدالرحمن الثانی نے آج وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ملاقات کے دوران یہ پیغام ان کے حوالے کیا. ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوگان کے ساتھ آج ترکی کے دورے پر گئے ہوئے قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نے ملاقات کی. ملاقات کے آغاز میں انہوں نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جانب سے ترک صدر کو خیر سگالی کا پیغام دیا اور ان کی صحت و عافیت اور ترک عوام کی مزید خوشحالی کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کیں. جواباً ترک صدر نے بھی صاحب سمو امیر کی خدمت میں سلام بھیجا اور ان کی بھرپور صحت اور قطری عوام کی مزید ترقی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا. ملاقات کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. سالانہ فلسطین فورم کا پہلا ایڈیشن آج سے دوحہ میں شروع ہو گیا ہے. یہ 3 روزہ فورم عربی مرکز برائے تحقیقات اور پولیٹیکل اسٹڈیز دوحہ اور انسٹیٹیوٹ آف فلسطین اسٹڈیز کے زیر اہتمام ہو رہا ہے جس میں دنیا بھر سے محققین، دانشور اور میڈیا شخصیات شرکت کر رہی ہیں. اس فورم کے 17 سیشنز کے دوران کل 60 سے زائد علمی مقالے پیش کیے جائیں گے. اس کے علاوہ متعدد ورک شاپس ہوں گی جن کے دوران فلسطین کی تاریخ اور مسئلہ فلسطین کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی. فلسطین کے شہر مقبوضہ بیت المقدس کے پرانے شہر کے قریب فائرنگ کے تازہ واقعے میں 2 اسرائیلی آبادکار شدید زخمی ہو گئے ہیں. قابض اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور ایک 13 سالہ نوجوان ہے جس کو زخمی حالت میں جائے واردات سے گرفتار کر لیا گیا ہے. آج کیا گیا یہ حملہ کل مقبوضہ بیت المقدس کے شمال میں واقع یہودی بستی بنی یعقوب میں ایک یہودی عبادت گاہ کے قریب کیے گئے فائرنگ کے اس واقعے کے بعد پیش آیا ہے جس میں 8 اسرائیلی آبادکار ہلاک اور 10 دیگر زخمی ہو گئے تھے. آج کے واقعے کے بعد قابض فضائیہ کے طیاروں نے سلوان قصبے کی فضاؤں میں پرواز کی. ادھر قابض پولیس نے مقبوضہ بیت المقدس سے درجنوں فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے. دوسری جانب فلسطینی مزاحمت نے کہا ہے کہ بیت المقدس کے ان دونوں واقعات نے اسرائیل کے فوجی اور سیکورٹی نظام کو توڑ کر رکھ دیا ہے. مقبوضہ بیت المقدس میں فائرنگ کے واقعات میں اسرائیلی آبادکاروں کی ہلاکت کے بعد مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں کشیدگی بڑھ گئی ہے اور بوکھلائے ہوئے اسرائیلی جیلوں کے فوجی دستوں نے کئی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کو زود کوب کیا ہے اور ان میں سے کئی ایک کو قید تنہائی میں ڈال دیا. فلسطینی قیدیوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں.
इसी दौरान नाबलुस के जुनूब में वाक़े कस्बे बीना के करीब गासिब इसराइली फोर्सेस ने सहाफ़ियों पर गोलियां चलाईं, अलबत्ता किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। उर्दून के दारुल हुकूमत अमान में आज से अरब मीडिया फोरम के इजलास का आगाज हुआ। फोरम का एहतमाम अरब लीग के जनरल सेक्रेटरीट की जानिब से किया गया। कतर मीडिया कॉरपोरेशन में बैनुल-अक़वामी ताउन और मनसूबाबंदी के इदारे के डायरेक्टर जनाब अहमद गस्साब अल हाजरी और इंफॉर्मेशन सिस्टम के इदारे के डायरेक्टर जनाब अब्दुल अजीज मोहसन अल याफई ने फोरम में कतर की नुमाइंदगी की। कतर की इंसानी हुकूक की कौमी कमेटी आइंदा माह फरवरी के दौरान इंसानी हुकूक और माहौलियाती तब्दीलियों के उन्वान पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रही है। कमेटी ने इस कॉन्फ्रेंस के एहतमाम और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक की आला कमीशन, अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़ज़ाइशी प्रोग्राम, अरब लीग और इंसानी हुकूक के कौमी इदारों के बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद की शराकत से किया है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों, आलमी इदारों, यूनिवर्सिटियों और सिविल तंजीमों के 300 से ज्यादा नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कतरी कौमी कमेटी बराए इंसानी हुकूक की सरबराह मोहतरमा मरियम बिन्त अब्दुल्ला अल अतिया ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस कमेटी की जानिब से माजी में मुनक़िद की गई कॉन्फ्रेंसों का ही तसलसल है, जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़, इंसान के डिजिटल राइट्स और इंसानी हुकूक का ख्याल रखते हुए दहशतगर्दी की रोकथाम जैसे मौज़ूआत पर मुनक़िद की गई थीं। इराक के वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोहम्मद शिया सुदानी ने कहा है कि इराक को गैर मुल्की लड़ाका फौजी दस्तों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको अमरीका के ज़ेर क़यादत आलमी इत्तेहाद या उस इत्तेहाद के बाहर दीगर ममालिक के ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इराक को दहशतगर्दी की रोकथाम, अमन और इस्तेहकाम और इराक की खुदमुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए इस ताउन की ज़रूरत है। पेरिस के अपने दौरे में उन्होंने कहा कि साबका इराकी हुकूमत की दरख्वास्त पर इराक में बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद की मौजूदगी एक सियासी समझौते के मुताबिक और एक पेशावराना बातचीत के तहत है, जिसका तयन सरकारी सिक्योरिटी इदारे करते हैं। दरअसल इराकी फौज ने दयाला सूबे के इलाके हौज अलवंद में बड़ी सिक्योरिटी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस के एक आला एहलकार जॉन केर्बी ने कहा है कि स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की को चाहिए कि वो अपने इख्तिलाफात को आपस में हल करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वाशिंगटन स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत की पुरजोर हिमायत करता है, लेकिन ये समझता है कि तुर्की के साथ इन मुल्कों के इख्तिलाफात को तीनों ममालिक आपस में हल करें। उन्होंने कहा कि अमेरिका नेटो में इन मुल्कों की रुकनियत के हवाले से तुर्की के खदशात को समझता है। मिस्टर जॉन केर्बी ने जोर देकर कहा कि इस हवाले से मुज़ाकरात को जारी रखने की जरूरत है। रूस और यूक्रेन दोनों ने ऐलान किया है कि मशरकी शहर ओगलीदार के एतराफ में शदीद लड़ाई हो रही है। रूसी अफवाज इस शहर में दाखिल होने की सरतोड़ कोशिश कर रही हैं। इससे कबल रूस एक दीगर स्ट्रेटेजिक शहर सूलीदार पर कब्जा कर चुका है। भारत की मशरकी रियासत झारखंड में कल रात एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लगने वाली आग में मियां बीवी समेत 6 अफराद जलकर मारे गए। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि 9 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, लेकिन उनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक है। ये हादसा धनबाद के एक नर्सिंग होम में पेश आया और अक्सर अमवात दम घुटने की वजह से हुई। बताया जाता है कि मरने वालों में शामिल मियां बीवी दोनों डॉक्टर्स थे और इस अस्पताल के मालिक थे। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। भारत की रियासत मध्य प्रदेश में तरबियती परवाज के दौरान 2 जंगी जहाज आपस में टकराकर तबाह हो गए और एक पायलट भी मारा गया।
मकामी मीडिया का कहना है कि ये सुखोई 30 और मेराज 2000 तर्ज के जंगी तैयारे थे। अफगानिस्तान में सर्दी की शदीद लहर में कम से कम 166 अफराद जाँ बहक हो गए। अफगानिस्तान की बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -33 डिग्री तक गिर गया है और मुसलसल बर्फबारी और बारिशों की वजह से सूरत हाल इंतहाई खराब है और बिजली की सप्लाई भी शदीद मुतासिर हो गई है। आलमी इंसानी इदारों ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान की निस्फ से ज्यादा आबादी भूखमरी के किनारे पहुंच गई है और 40 लाख बच्चे सेहतमंद ग़िज़ा से महरूम हैं। आज का दूसरा नशरा खत्म होने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मर्तबा फिर समाअत फरमाइए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के नाम एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल से है। तुर्की के सदर के साथ आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते के ताज़ा हालात पर बातचीत की गई। फ़लस्तीन सालाना फोरम का पहला एडिशन आज से दोहा में शुरू हो गया है। उधर बैतुल मक़दिस में फायरिंग के एक और वाक़े में 2 इस्राएली आबादकार जख्मी हो गए हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ने ऐलान किया है कि मशरकी शहर ओग्लिडार के एतराफ में शदीद लड़ाई हो रही है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और इसके साथ ही आज की खबरें खत्म हुई। प्रोड्यूसर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर हिशाम खमीस और फरजाना सफदर को यहीं पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1 क्यूरियल से और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे।